Hello dear children, I extend a very warm welcome to you as well as to your parents in my EVS video class for 7th May. I am sure children, if you all are staying inside, you are not going out unnecessarily and you all are taking good care of yourselves. अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो तो आई एम श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. Listen to your parents, listen to your family members. We are doing the chapter My Family and इस chapter में हमने पढ़ा कि कैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. सो आई एम श्योर you all must be taking care of yourself, your elders must be taking care of you, and at the same time you also must be taking care of your parents. ये हमने पढ़ा था ना कि पेरेंट्स की आप कैसे केयर कर सकते हो. हाउ कैन यू केयर फॉर योर पेरेंट्स? बाय हेल्पिंग देम. उनके काम में उनको हेल्प करके, उनकी बात मान के आप उनकी केयर कर सकते हो ना. सो डू लिसन टू योर पेरेंट्स. Do whatever they ask you to do because parents always will tell you good things. Parents हमेशा आपको अच्छी बातें बोलेंगे और अच्छा काम करने के लिए बोलेंगे. So children, stay home, stay indoors and stay safe. Okay? So the chapter is My Family and we all know that our family is very important to each one of us. ये हमें बहुत कोई स्पेसिफिक, बहुत कोई नई चीज नहीं पता चली है कि फैमिली हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है या हम फैमिली की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हम फैमिली में क्या क्या करते हैं. ठीक है, वी ऑल नो कि फैमिली है. फैमिली में इफ इट इज अ जॉइंट फैमिली देयर आर मोर मेंबर्स. इफ इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली देयर आर फ्यू मेंबर्स, ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर देयर. सो इफ इट इज अ जॉइंट फैमिली देयर आर मोर मेंबर्स, सो दैट मीन्स काम भी ज्यादा होगा ना. ज्यादा लोग होंगे तो काम भी ज्यादा होगा. बट देन द एडवांटेज इज दैट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे शेयर द वर्क. सब लोग मिलजुल करके शेयर करके काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर पूरा बर्डन है एंड रेस्ट आर एंजॉयिंग. नहीं, ऐसा नहीं है. सारे लोग मिलजुल करके काम करते हैं. घर में जो भी लेडीज हैं दे कुक फॉर द फैमिली. ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर सारा बर्डन आ गया और बाकी सारे आराम कर रहे हैं. घर के जो लेडीज हैं दे कुक फॉर द फैमिली, दे टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स. जो घर का जो भी काम है, घर की साफ सफाई है, क्लीनलीनेस है, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं. ओके, सो family, my family chapter we are doing, we have completed the exercises of the previous year's book. जैसे मैंने बताया, this is the previous year's book. Okay, so only one exercise is left now and that is on page number 19, that is understand the family tree. 19 and 20 ये मैंने बताया था कि this is a family, Mr. Mohan and Joyita. ठीक है, Mr. Mohan and Joyita are a couple. They have a son whose name is Rohan. Mr. Mohan and Joyita wife husband है. उनका एक बेटा है जिसका नाम रोहन है. ठीक है, रोहन की वाइफ का नाम दीपिका है. Rohan's wife is Deepika and Rohan and Deepika have 2 children. They are Azad and Akriti. Okay, now this is the family tree. Now we have to complete the table which is given on page number 20. This is the table. ठीक है, now we have to complete this. Now I am writing on the board but you have to complete the table in your book only. आपको जो ये टेबल है अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है. You don't have to write this in your notebook. Okay, so the question is, H, understand the, ये मैंने फैमिली ट्री मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था. सो अंडरस्टैंड द फैमिली ट्री. ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था. रिलेशंस, कंप्लीट द table
given below. Okay, the first, Rohan's parents. I am not making the table, children. मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, मैं बस ऐसे लिख रही हूँ. आपको टेबल में आंसर आगे लिखना है. सेकेंड इज AAKRITI, Akriti's parents. Okay, Rohan's parents, then Akriti's parents, then Mohan's wife. P is capital here. PARENTS, parents. Then ROHANS, Rohan's wife. The fourth one is Deepika's in-laws. ठीक है, and Rohan's, अच्छा, first was Mohan's wife. It was not Rohan, it was Mohan's wife. Third is Mohan's wife, and fifth is Rohan's wife. MOHAN and ROHANS, Rohan's wife. So now first I will write the answer of these 5 and then we will do rest. Okay? ये आपको फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपको अपनी बुक में ही लिखना है, नॉट इन योर नोटबुक. ओके, इसको नोटबुक में नहीं लिखना है, अपनी आपको बुक में ही इस वर्क को कंप्लीट करना है. ओके, नाउ लेट अस सी रोहन्स पेरेंट्स. सबसे पहले हमने पढ़ा कि मिस्टर मोहन एंड जोइता आर अ कपल. कपल मीन्स वाइफ हस्बैंड. दे हैव अ सन नेम्ड रोहन. उनका एक बेटा है जिसका नाम है रोहन. सो नाउ हु आर रोहन्स पेरेंट्स? रोहन्स पेरेंट्स आर Mr. Mohan and Joyita. Rohan's parents are Mr. Mohan and Joyita. ठीक है, Mr. Mohan and Joyita are Rohan's parents. Okay, now Akriti's parents. आकृति के पेरेंट्स कौन है? Now Mr. Mohan and Joyita, they have a son whose name is Rohan. ठीक है, now Rohan is married to Deepika. रोहन की शादी किससे हुई है? दीपिका से हुई है. So Rohan is Mr. Mohan and Joyita's son and Deepika is their daughter-in-law. ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहू. Then they have 2 children, Azad and Akriti. ठीक है, तो आजाद के पेरेंट्स भी रोहन एंड दीपिका हैं एंड आकृति के पेरेंट्स भी रोहन एंड दीपिका है, बिकॉज आजाद एंड आकृति आर चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स. सो आजाद एंड आकृति आर सिबलिंग्स. ठीक है, सो हु आर आकृति's पेरेंट्स? दे आर रोहन एंड दीपिका. ठीक है, आकृति's parents are Rohan and Deepika. Now who is Mohan's wife? Mohan and Joyita are a couple, so Joyita is Mohan's wife. So who is Mohan's wife? Joyita. You just have to write the name, children. ठीक है, you just have to write the name. You don't have to write the complete sentence. पूरा sentence नहीं लिखना है, सिर्फ word लिखना है, सिर्फ names लिखने हैं. Okay? Then Deepika's in-laws. इन-लॉज का मतलब होता है जो अपोजिट साइड की, जैसे आपके जो पापा है, ठीक है, तो जो मम्मी के साइड की फैमिली होगी वो उनके इन-लॉज होंगे. ठीक है, इन-लॉज की फैमिली, जैसे आपके जो नाना है वो आपके पापा के फादर इन लॉ होंगे, आपकी नानी है वो पापा की मदर इन लॉ होंगी. ठीक है, एंड सिमिलरली जो पापा के साइड की फैमिली है वो आपके मम्मी के इन-लॉज होंगे. आपके दादाजी जो है वो मम्मी के फादर इन लॉ होंगे, दादी जी जो है वो मम्मी की मदर इन लॉ होंगी. ठीक है, और बाकी भी जो और भी पापा के साइड में जो और फैमिली मेंबर्स है, दे आर योर मदर्स इन लॉज. ठीक है, तो दीपिका के इन लॉज मतलब दीपिका के इन लॉज कौन हुए? मिस्टर मोहन एंड जोइता.
because Mr. Mohan and Joyita are Deepika's husband's parent. ठीक है, तो जो हस्बैंड के जो पेरेंट्स होते हैं वो वाइफ के इन लॉज हुए, और वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं वो हस्बैंड के इन लॉज हुए, जिसको हिंदी में सास ससुर बोलते हैं. ठीक है, तो आपके जो दादा और दादी हैं वो आपकी मम्मी के सास ससुर हैं, आपके नाना नानी आपके पापा के सास ससुर हैं. तो दीपिकाज इन लॉज कौन है? दीपिकाज इन लॉज आर अगेन मिस्टर मोहन एंड जोइता. ठीक है, देन रोहन्स वाइफ. हु इज रोहन्स वाइफ? रोहन इज मैरिड टू दीपिका, सो दीपिका इज रोहन्स वाइफ. DEEPIKA, दीपिका. ओके, नाउ राइट दीज 5 चिल्ड्रन. फिर इसको मैं रब करके रेस्ट 5 लिखूंगी. राइट दीज 5. मैं साइड में हूं बेटा, और शुड आई कम टू दिस साइड सो दैट यू कैन राइट? I hope everyone has written, and I don't think children you will have any problem in writing the answers, because family tree मैंने आपको समझाया कि आपस में सबका क्या रिलेशन है. ठीक है, ये मैंने सबको समझा दिया था, तो आई एम श्योर you will not have any problem in writing the answers. ठीक है, everyone has written. Now let us complete the next 5. Okay, ये मैं erase कर रही. Next 5 are, 6th one is Azad's grandparents. AZAD. Azad's parents. Grandparents. Then next is Akriti's brother. AAKRITIS. Akriti's brother. Then 8th is Azad's sister. Azad's sister. 9th is Deepika's son. And 10th is Rohan's daughter. Rohan's daughter. Okay. Now let us write the answers. Azad's grandparents. Now grandparents are your parents' parents. Grandparents कौन होते हैं? This is Azad's grandparents. So grandparents are your parents' parents. जो parents के parent होते हैं, they are your grandparents. Father's parents are your dada dadi, that is paternal grandparents, and mother's parents are your nana nani, that is maternal grandparents. ठीक है, तो यहाँ पे आजाद के grandparents कौन है? They are again Mr. Mohan and Joyita. So Mr. Mohan and Joyita. ठीक है, then who is Akriti's brother? आकृति का भाई कौन है? Now Akriti and Azad, they are the children of Rohan and Deepika. आकृति और आजाद कौन है? वो दीपिका और रोहन के बच्चे हैं. तो both are the children of same parents, that means they are siblings, भाई बहन है. तो आकृति का भाई कौन है? Akriti's brother is Azad. And who is Azad's sister? That is Akriti. So Akriti's brother is AZAD, Azad, and Azad's sister is Akriti. Azad and Akriti are siblings, भाई बहन है. ठीक है, then who is Deepika's son? दीपिका का बेटा कौन है? Now Deepika and Rohan are wife husband, and they have 2 children, that is Azad and Akriti. So Azad is their son and
Akriti is their daughter. So who is Deepika's son? Deepika's son is Azad. And who is Rohan's daughter? Rohan's daughter is... This is just a question. ऐसा नहीं है कि Azad is only Deepika's son and Akriti is only Deepika's daughter. ऐसा नहीं है. Azad is the son of Deepika and Rohan both. And Akriti is the daughter of Rohan and Deepika both. Azad और Akriti जो है वो रोहन और दीपिका के बच्चे हैं. They are the children of Rohan and Deepika. So they are siblings. Okay. So complete this table, children. And after this we will be doing life skills. And then this exercise will be complete. So write this in your book. I hope everyone has written. सबने लिख लिया? Everyone has written. इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए because I have already explained the family tree मैंने पूरा explain कर दिया है. Okay? Fine. अभी इसको erase करूं मैं. Okay, you keep on writing अगर किसी का छूटा है. Now we will be doing life skills. This is on page number 20. Okay. Now what do you understand by life skills? Life skills कहते किसे हैं? ठीक है. जो life skills होती हैं they help us to develop our thinking. जैसे जो हम सोचते हैं, जो हम इमोशनली सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, या हमारी जो सोशल एंड इमोशनल थिंकिंग. जैसे सोशल थिंकिंग का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम अस, हम अपने बारे में तो सोचते ही हैं, उसके अलावा जो हम और दूसरों के बारे में सोचते हैं. ठीक है. वी ऑल लिव इन अ फैमिली, सो वी केयर फॉर आवर फैमिली, वी केयर फॉर आवर सेल्फ. अपनी फैमिली अपने अलावा, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी. अलग से तो हम अकेले किसी घर में नहीं रहते हैं ना. वी लिव अमंग पीपल. हमारा घर है, हमारे आसपास और भी लोग रहते हैं, कॉलोनी है, पूरी सोसाइटी में हम रहते हैं. सोसाइटी मीन्स दैट मीन्स वी लिव अमंग पीपल. ओके. तो हमें अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए. ठीक है. सो लाइफ स्किल्स के जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी क्वेश्चंस होती है, जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, दे हेल्प अस टू थिंक, दे हेल्प अस टू लर्न सोशल एंड इमोशनल थिंकिंग. ठीक है. दे डेवलप, जो हमारी सोशल और इमोशनल थिंकिंग है उसको डेवलप करती है लाइफ स्किल्स. एंड लाइफ स्किल्स एज सच आपको बुक में कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी. वी लर्न लाइफ स्किल्स विथ आवर एक्सपीरियंसेस. जो हम रोज रोज की लाइफ में हम बहुत सारी चीजें जो अनुभव करते हैं, बहुत सारी चीजें जो देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, अपने नेबरहुड में देखते हैं, वी गो आउटसाइड, उन सारी चीजों से जो हम कुछ सीखते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें. ठीक है. सो दीज आर द लाइफ स्किल्स. ठीक है. सो दे हेल्प लर्नर्स टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल थिंकिंग. ठीक है ना. एक तो थिंकिंग मतलब सोचना कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो क्यों है ये प्रॉब्लम, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. सो दे डेवलप थिंकिंग, सोशल एंड इमोशनल थिंकिंग. ओके. Then these skills equip learners to face problems and challenges in real life. मतलब हमारी जो रियल लाइफ है, रोज की जो हमारी लाइफ है, उसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करने में ये स्किल्स हमारी हेल्प करती हैं. ठीक है. लाइफ स्किल्स के लिए हमको कुछ स्पेशली अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं होती है. बुक्स में आपको ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा. जैसे अभी आप बाहर जब मार्केट में जाते हो तो वेजिटेबल्स खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदा, ठीक है, शूज, हमारे जूते टूट गए, वी गो टू अ कॉर्नर, जूते बनवाया. ठीक है. रिक्शा जो चलाते हैं, सो ऑल दीज पीपल मे नॉट हैव इवन सीन अ स्कूल. कभी इन लोगों ने हो सकता है स्कूल देखा भी ना हो, स्कूल में पढ़ाई नहीं की होगी, स्कूल देखा भी नहीं होगा शायद, बट दे हैव लाइफ स्किल्स. मतलब उनको विदाउट इवन, जैसे मैथ्स कभी पढ़ा नहीं होगा, बट वो
आपको जब आप सब्जी उनसे खरीदते हो, वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी खरीदी, तो वो इतनी सारी सब्जियां लेकर आते हैं, दे रिमेम्बर द प्राइस ऑफ ईच वेजिटेबल। हमको अगर अभी 5 वेजिटेबल्स का कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा कि याद करो, तो वी विल फॉरगेट कि टोमेटो कैसे है, पोटैटो कैसे है, अनियन कैसे है, ब्रिंजल कैसे है, लेडी फिंगर कैसे है, वी मे नॉट बी एबल टू रिमेम्बर। बट जैसे वेजिटेबल वेंडर्स है, फ्रूट वेंडर्स है, फ्रूट सेलर्स होते हैं, वो जब बेचते हैं तो उनको हर एक चीज का प्राइस एकदम याद रहता है। ठीक है, आप 1 kg लिया, हाफ kg लिया, 250 ग्राम लिया, 2 kg लिया, कितना भी लिया, वो तुरंत कैलकुलेट करके उसका कॉस्ट बता देते हैं। ठीक है, उन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, आपकी तरह कभी स्कूल नहीं गए होंगे, कभी मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, बट स्टिल दे आर एबल टू डू इट इमीडिएटली। सो दैट इज लाइफ स्किल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लाइफ स्किल बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज द पर्सन हैज लर्न द स्किल ऑफ सर्वाइविंग, मतलब उसको अगर ये नहीं अगर वो करेगा तो वो कैसे कमाएगा, पैसे कैसे कमाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा। सो दीज आर लाइफ स्किल्स विच हेल्प अस टू फेस प्रॉब्लम्स इन आवर रियल लाइफ। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के लोगों को देख करके हम लाइफ स्किल सीखते हैं। ओके, this is the last exercise of this lesson, and after this children, after this we will be doing the exercises of the latest book. Okay, so life skills. Life skills. Now this is on page number 20. You can see it here. Okay, ये आप देख सकते हो। How many activities given in the picture do you perform at home for your family? Put a tick mark or cross mark in the given boxes below. Now here you can see the pictures of few activities. ठीक है, कुछ काम की आप पिक्चर्स देख रहे हो, कुछ जो घर में हम काम करते हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज की पिक्चर है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आउट ऑफ दीज पिक्चर्स, इनमें से जो एक्टिविटीज की पिक्चर है उसमें से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप घर पर अपनी फैमिली के लिए करते हो। ठीक है, तो जो काम आप करते हो उस पे आपको टिक लगाना है, एंड जो काम आप नहीं करते हो उस पे आपको क्रॉस लगाना है। ओके, नाउ यू ऑल सेड दैट यस मैम वी हेल्प आवर पेरेंट्स। किसी ने बोला कि मैं डस्टिंग करने में हेल्प करती हूँ, किसी ने बोला कि मम्मी जो भी सामान मांगती है मैं सामान ला करके देता हूँ। ठीक है ना, अलग अलग काम में सबने बताया कि हम मम्मी की हेल्प करते हैं। दैट मीन्स यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। आप सब अपने घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो। तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, लाइक अभी ड्राइंग तो मैं नहीं बना सकती हूँ, पिक्चर वाइज में जस्ट नंबर लिख दे रही हूँ। ठीक है, इन द फर्स्ट पिक्चर what is the child doing? फर्स्ट पिक्चर में लेट मी मेक द बॉक्सेस, जैसे पिक्चर बनी हुई है मैं वैसे अकॉर्डिंगली बॉक्सेस बना रही हूँ। 1 बॉक्स, सेकेंड बॉक्स इज हियर। ठीक है, थर्ड बॉक्स इज इन बिटवीन, थर्ड बॉक्स कहाँ है, बीच में है। देन फोर्थ बॉक्स इज हियर एंड 1 बॉक्स इज हियर। ओके, 5 activities are given, 1 2 3 4 5. Now first is you can see a boy arranging the bed. जब हम सो करके उठते हैं सुबह तो बेड को हमें ठीक भी तो करना होता है ना। रात में सोते हैं तो बेड तो पूरा चादर वगैरह खराब हो जाती है, तो मॉर्निंग में उठ के हम पिलो को प्रॉपर तरीके से रखते हैं, चादर को फोल्ड करके फिर बेड कवर डालते हैं। सो हियर यू कैन सी द बॉय अरेंजिंग द बेड। वो अपने बेड को ठीक कर रहा है, वो पिलो को जगह पे रख के उसको ठीक कर रहा है। सो आई एम श्योर यू ऑल डू इट। बहुत सारे बच्चे करते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी करते होंगे कि सो के उठ गए मम्मी आके बिस्तर ठीक करेंगी। अगर नहीं करते हो तो इतना सा तो कर सकते हो ना, मम्मी की हेल्प कर सकते हो कि सुबह उठ करके अपनी बेड पे पिलो वगैरह को ठीक से कर दो। तो वी विल पुट अ टिक हियर, ये एज्यूम करके कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू दीज एक्टिविटीज। नाउ अभी तो मैं ये बोर्ड पे कर रही हूँ, बट यू हैव टू डू दिस इन योर बुक ओनली। तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, अगर आप ये काम करते हो, इनमें से जो भी एक्टिविटी आप घर पे करते हो उस पे आपको टिक लगाना है, और जो आप एक्टिविटी नहीं करते हो देयर यू हैव टू पुट अ क्रॉस। तो मैं ये मान रही हूँ कि आप
सारे बच्चे ये एक्टिविटी करते होंगे, मतलब सुबह सो करके उठने के बाद अपना बेड ठीक करते होंगे। तो मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन सेज, I have not written the question. The question says कि how many activities given in the pictures do you perform at home for your family? Put tick marks or cross marks in the given boxes below. ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें करना है, ठीक है। अगर आप वो काम करते हो तो आप टिक लगाओगे, नहीं करते हो तो क्रॉस लगाओगे। देन आफ्टर टिक एंड क्रॉस करने के बाद इट सेज कि इफ इट इज मोर देन 2 tick marks, you are on the right path. You need to improve if you get less than 2 marks. जैसे आपने ये सारे टिक या क्रॉस किए, तो अगर आपकी जो टिक है मतलब 2 से ज्यादा एक्टिविटीज में आपकी टिक है, मतलब आप इनमें से 2 से ज्यादा एक्टिविटीज अपनी फैमिली के लिए करते हो, दैट मीन्स आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कीप ऑन डूइंग इट। बट इफ योर टिक मार्क आर लेस देन 2, अगर आपके टिक मार्क्स जो है वो 2 से कम आते हैं, दैट मीन्स अगर 1 है या 1 भी नहीं है, दैट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। मतलब यह है कि आपको फिर करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करते हो, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी सिंपल टास्क, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको वो काम करना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज नॉट दैट कि बस यही सारे काम है, इसके अलावा आप अपने तरीके से जैसे भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, ओके। You must help your parents in other ways as well, ठीक है। So that you improve your habits, you become a better child. आप सब अच्छे बच्चे हो और अच्छे बनो, ठीक है। So first activity is arranging the bed. Now second में बच्चा क्या कर रहा है, टेबल अरेंज करने के लिए मम्मी ने बोला, मम्मी ने बोला मैथ्स लगा दो, टेबल अरेंज करो। खाने से पहले हम टेबल अरेंज करते हैं, प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, बाउल्स हैं, सब लाके टेबल पे अरेंज करते हैं। तो व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, द चाइल्ड हैज पुट द मैथ्स और उस पर वो सो गया सर रख करके। आई एम श्योर यू डू नॉट डू इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से ये काम कोई नहीं करता होगा। अगर मम्मी ने बोला है टेबल अरेंज करो तो आप पूरा टेबल अरेंज करते होगे। तो यहाँ पे हम एक क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, कि ये मान के, ये एज्यूम करके कि आप लोग में से कोई ये काम नहीं करता होगा। Then third is filling bottle from the tap. मम्मी ने पानी की बोतल भरने को बोला तो आप बोतल भर रहे हो। अभी किसी के यहाँ हो सकता है डायरेक्टली टैप में से ही वाटर फिलअप करते होंगे, किसी के यहाँ एक्वागार्ड होगा, वाटर प्यूरिफायर होगा। तो द गर्ल इज फिलिंग द बॉटल डायरेक्टली फ्रॉम द टैप। आई एम श्योर किसी के घर भी आप डायरेक्ट टैप से पानी नहीं भरते होंगे, क्योंकि टैप में जो पानी आता है, नल में जो पानी आता है, वो जो टैंक वगैरह का पानी होता है, सो दैट इज नॉट वेरी क्लीन, ठीक है। आई एम श्योर सबके घर में कोई ना कोई वाटर प्यूरिफायर जरूर यूज करते होंगे। सो आई एज्यूम कि ये काम गलत है, डायरेक्टली टैप से वाटर नहीं भरना चाहिए, बॉटल नहीं भरना चाहिए, बिकॉज बॉटल का पानी हम पीते हैं एंड जो टैप में डायरेक्ट वाटर आता है, दैट इज नॉट वेरी क्लीन। तो मे बी मम्मी ने उसको बोला होगा वाटर भरने के लिए, उसने सोचा होगा मैं जल्दी जल्दी टैप से भर दूं। सो आई एज्यूम कि आप ये काम नहीं करते होंगे। वी विल पुट अ क्रॉस हियर, ओके। हो सकता है बहुत बच्चों क्या, बहुत लोगों क्या, टैप में ही जो पानी आता होगा वही क्लीन वाटर होगा, उसी को भरते होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज अरेंजिंग द टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस। आपने खेला, अपने टॉयज निकाल करके खेला, उसके बाद उनको जगह पे रखना भी होता है ना। सो सी दिस बॉय, ही इज आफ्टर प्लेइंग, ही इज कीपिंग हिज टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस। जो भी उनकी प्लेस है, शेल्फ में जहां रखना है वहां रखना है। सो दिस इज अ करेक्ट हैबिट, ओके। सो वी विल पुट अ टिक हियर। देन द गर्ल इज डस्टिंग। वो सोफा वगैरह हमको रोज डस्टिंग करनी होती है ना, धूल हो जाती है चेयर पे, टेबल पे, सोफा वगैरह पे। तो द गर्ल इज डस्टिंग द सोफा। So that is also a very good habit. I am sure आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये काम करते होंगे। So children, here we have got 1, 2, 3. We have got 3 ticks. ठीक है? So it says that if you get more than 2 ticks, that means you are on a right path. So I am sure ये काम आप सब करते होंगे and you are on right path. That means you all are very good children. और अगर
किसी के अगर 2 से कम टिक्स है, दैट मीन्स यू शुड इनकलकेट दीज हैबिट्स. पेरेंट्स की जैसे भी हेल्प कर सकते हो इन वॉट एवर स्मॉल वे. आप पेरेंट्स की जैसे भी हेल्प करोगे दे विल फील वेरी हैप्पी. छोटा सा भी कोई काम कर दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. Okay children, so the exercises of this lesson, this book is over. Now we will start with the exercises of our latest book. Not of course not now, in the next class. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.